اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مملکت خداداد ملک پاکستان سمیت عالم بھر کے مسلمانوں اور انسانیت ایک بہت ہی نازک اور مشکل حالات سے دوچار ہے۔ سائنسی حوالے سے، طبی حوالے سے اس کی جو بھی وجوہات ہوں وہ اپنی جگہ ہیں اور اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا مذہب اور دین اس طرح کی خوفناک حالات کے طاری ہونے پہ کچھ وجوہات بتاتا ہے جن کی پاداش میں انسانیت کو اس طرح کی وبائی اور خوف کی کیفیات میں اذن خداوندی سے جکڑا جاتا ہے تاکہ انسان بھولے ہوئے خدا کو یاد کرے اور اپنی زندگی جس ڈگر اور جس روش پہ چل رہی تھی اس کو ایک لمحہ رک کر یو ٹرن لیتے ہوئے صحیح روش پہ اور صحیح رستے پہ گامزن کریں، جس کی برکت سے اللہ ان کی دین و دنیا کو سرخروئی اور کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے۔ قرآن مجید کی 21ویں پارے کی سورہ روم کا واضح اعلان ہے، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ یہ پہلی وجہ بتاتا ہے قرآن کہ جب بھی زمین اور آسمان میں کوئی فساد، خرابی، پریشانی، وبائی امراض، دشمن، غلبہ اور اس سمیت دیگر زمینی اور آسمانی آفات کا نزول بما کسبت ایدی الناس ان گناہوں کی پاداش میں ہے جو انسان صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک خدا کی نافرمانی میں مست ہو کر خدائے وحدہ لا شریک کی خدائی کو چیلنج کرتے ہوئے جب زمین پہ دم دناتا ہے، پھر اس قسم کی وبائی امراض انسانی زندگیوں کو نگلنے کے لیے زمین پہ بھیج دی جاتی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ قرآن مجید نے صاف بتایا کہ آپ ان مشکل ترین لمحات میں انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اور ذائقہ چکھانے کے لیے اس چکی میں ان کو اس لیے پیسا جاتا ہے تاکہ ان کے دل میں احساس پیدا ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ ہماری دنیا کے لیے بھی ہماری آخرت کے لیے بھی ضرر رساں ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا تو قرآن کی آیت آگے کہتی ہے لعلہم یرجعون، جو میرے بندے ہوں گے وہ وہاں سے یو ٹرن لیں گے، وہاں سے رجوع کریں گے، وہاں پہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں گے، اور اس کی برکت سے میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور اپنی رضامندگی بھی عطا کر دوں گا۔ وقت چونکہ مختصر ہے، میں نے باتیں بہت ساری کرنی ہیں، اس آیت کے بعد حدیث رسول کی طرف چلتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آنے والی وبائی امراض اس کا تعلق انسانی اعمال سے ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک کے کلمات ہیں کہ جس قوم کے اندر ناپ اور تول میں کمی کا رواج ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں پہ اللہ قحط سالی کو مسلط کرتے ہوئے بارشوں کا نزول روک دیتا ہے، اور ساتھ دوسری جگہ ارشاد فرمائی کہ جس قوم میں فحاشی، بدکاری، زناکاری، شرم و حیا سے عاری معاشرہ،
जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने वाला, अपनी शहावत की आंख को बेलगाम करने वाला माशरा जब इस घटिया तरीन हरकत में मुब्तला होता है तो अल्लाह उन पे ऐसी वबाई अमराज को मुसल्लत कर देता है जिनका नाम उनके आबा अजदाद ने पहले नहीं सुना होगा। और कुर्बान जाइए आकाए दो जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का। बिल्कुल यही हालात आज उम्मत मुसलमान और मुसलमानान आलम और अक़वाम आलम पे तारी है। और मैं समझता हूं कि सरकार मदीना ने सच फरमाया, जो फरमाया बजा फरमाया। यही वो जहर आलूद आमाल थे जिनको ख्वाहिशात नफ्सानिया की मिठास के अंदर इस जहर के कैप्सूल को बनाया गया और आज वो जहर असर दिखा रही है। इसलिए सबसे पहली बात इन असबाब की निशानदेही के बाद यह है कि हम सबको इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर तौबा करना होगी। ये वो मौका है जिस मौके पे अल्लाह जल्ल जलालुहु इंसानियत को इस तबाही की दहाने पे लाने के बाद हमें ये बात बावर कराई जा रही है। अब यहाँ से आगे जाओगे तो तबाही ही तबाही है, यहाँ से आगे जाओगे तो खौफनाक ही खौफनाक। मुसलमानों का वक्त आया है, रुक जाओ कि रुकने का वक्त आया है। अब आगे ना बढ़ो, अब मजीद इससे आगे कदम उठाओगे बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। इसलिए मैं तमाम मुसलमानान आलम से खास तौर पे शुरकाए नमाज जुम्मा से अपील करता हूँ, हम में से हर एक गुनाहों का बार आपने सर पे उठा के फिर रहा है। मुझ समेत कोई ऐसा नहीं है जिसका दामन गुनाहों के दाग से दागदार न हो। हम में से हर एक खताकार है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को अपनाकर आइए हम इस मौके पे तौबा करते हैं, अपनी गुजरी हुई जिंदगी की तलाफी तौबा के लिए करते हुए दीन के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने का अज़म और इरादा करते हैं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह जल्ल जलालुहु इस वबा को, इस बीमारी को, इस परेशानी को अल्लाह अपने फजल और करम से इंशाअल्लाह टाल देंगे। इसके साथ साथ दीन इस्लाम ऐसा दीन है कि इसमें ईमान अगर किसी बंदे को नसीब हो गया तो वो हर हाल में फायदे में बताता है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों घबराया ना करो, इस किस्म की आफात और मसाइब अगर तुम्हें घेर ले तो जहां ये मसाइब हों, जहां ये बीमारियां हों, वहां से भागना नहीं है। और जहां ये मसाइब और बीमारियां हैं और आप मौजूद नहीं है तो एहतियाती तदबीर ये है कि आपने वहां जाना नहीं है। इसी ज़िमन में हमारी हुक्मरान और गवर्नमेंट ने जो एहतियाती तदाबीर हमें दी हैं, तो इसी की हदीस मुबारक की रोशनी में उलमा फरमाते हैं हम सब का बासियत पाकिस्तानी शहरी होने के उन पाबंदियों का और उन एहतियाती तदाबीर का एहतमाम करना ये हम सब के लिए बासियत मुसलमान भी जरूरी है और बासियत पाकिस्तानी होनी भी जरूरी है। इसलिए हर किस्म की जो पाबंदियां बताई गई हैं उनका एहतराम करना। मिसाल के तौर पे एक आदमी को नज़ला जुकाम की बीमारी लाहिक है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे बंदे को चाहिए कि अपने आप को सेफ रखे, घर के अंदर पाबंद करे, हॉस्पिटल जाने का एहतमाम करे, ये ना करे कि मजमे के अंदर फिरे, नमाज के लिए बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद में आए और नमाज जुम्मा अदा करने के लिए आए, उसकी नमाज इंशाअल्लाह वहीं कबूल होगी, वहीं उसको जमात का सवाब। उसको चाहिए कि अपने आप को लगा रखे। हाथ मिलाने से गुरेज करने में शरई एतबार से कोई हर्ज नहीं है। अगर हाथ नहीं मिल सकता ये मुसाफा अलग सुन्नत है और सलाम वालेकुम कहना अलग सुन्नत है। आप ज़बानी सलाम को रवाज दें और मुसाफा अगर इस बीमारी की वजह से बताने वाले बताते हैं कि मुनासिब नहीं है तो इसको छोड़ देना ये जरूरी और लाजिम हुआ करता है। इस पे कोई आदमी किसी से नाराज ना हो, कोई आदमी किसी से गिला ना करे कि फलां मुझे मिला नहीं है, गले नहीं लगाया है और मुसाफा नहीं किया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और खास तौर पे बच्चे
जो मसाजिद में भी नमाज के लिए आते हैं, तो आपको ये बताया गया कि बच्चों को ये बीमारी ज्यादा मुतासर करने का खदशा है, तो बच्चों को मस्जिद में इन दिनों में ना लाया जाए। खत्ता के उलमा ने ये कहा है कि सिर्फ फराइज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद में आए, उससे पहले या बाद की कोई सुन्नत और नवाफिल है तो वो भी आप घरों में पढ़ने का एहतमाम रखें। असल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही है कि मसाजिद में सिर्फ और सिर्फ जो बाजमात नमाज फर्ज अदा की जाती थी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दौर में, उससे पहले की सुन्नतें बाद की सुन्नतें आप साहब अहबाब उसी सुन्नत को जिंदा करते हुए अपने घरों में अदा करने का एहतमाम करें। बिल्कुल ऐन वक्त में मस्जिद में आए, ऐन वक्त पे नमाज अदा होगी, ऐन वक्त पे आप सारे लोग मुंतशिर हो जाएं। बाकी करने धरने वाली जात अल्लाह है, ये एहतियाती तदाबीर हमारे जिम्मे लाजिम है। उसकी एक मिसाल दे के बात खत्म करके वक्त खत्म हो रहा है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से सफर करके आए किसी और इलाके के, मदीने में दीन सीखने के लिए। मस्जिद नबवी के बाहर उन्होंने अपने ऊंट को खड़ा कर दिया, छोड़ दिया, अंदर चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को बांधा है, सवारी को बांधा है। उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा है, वो इसको संभाल लेगा। फरमाया नहीं, जाओ उसके पांव को बांध कर आओ, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। ये तवक्कुल का सही मकसद होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे अहबाब लापरवाही का मुजाहरा करते हुए कहते हैं कि खैर ये बीमारी लगी अल्लाह लासी दे, ये मुकद्दर में जाओ नहीं लगनी, ये चीजें खिलाफ तवक्कुल नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए सारी चीजों के साथ साथ इस्तिग़फ़ार का एहतमाम, सदका और खैरात का एहतमाम जितना भी हो सके, जिस जिन्स का भी सदका हो, जरूरी नहीं कि पैसे ही दें, जरूरी नहीं कि आप बकरे ही दें, जिस जिन्स की वो हर वो चीज, हर वो जिन्स जो मखलूक खुदा के लिए फायदे की चीज बन सकती है, कपड़ा, नमक, खाना, रुपया, पैसा, और इसी तरह दूसरी वो चीजें जो किसी को फायदा पहुंचा सकती हैं, आप सदके के तौर पे दें। नियत अपनी भी करें, अपने घर वालों की भी करें, पूरे के पूरे आलम के मुसलमानों की नियत करें कि अल्लाह इस सदके की बरकत से इस बला को डाल दे। आमना के बाद जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सदका तरुद्दुल बला, बलाओं और मुसीबतों को अगर कोई चीज टालती है, बला की आग को अगर कोई चीज ठंडा करती है, वो पानी जो बला की मुसीबत की आग को बुझाता है, वो सदका है। इसलिए इसका एहतमाम करें, नवाफिल का एहतमाम करें। जो दो चीजें बता रहा हूँ, आखिरी दो बातें। इसी ज़िमन में कुछ लोगों ने ख्वाब में शुरू की हुई है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में मेरे बाल होंगे, उनको निकाल के इस्तेमाल करो तो अल्लाह शिफा देंगे। ये मन गलत बात है, इन ऐसी बातों की तरफ आपको तवज्जो देने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। ये किसी बदबख्त मरहूम ने मुसलमानों की कुरान की तिलावत से तवज्जो हटाने के लिए ये मन गलत बात निकाली है, ताकि किसी को इस तरफ जाने का मौका ना मिले कि सूरह फातिहा पढ़ूंगा तब मुझे शिफा मिलेगी। ये बात नहीं, ये सूरह फातिहा के अंदर बाल ढूंढेगा कि मुझे वहां से बाल मिले, सूरह बकरा में बाल मिले, सूरह यासीन में बाल मिले, तो उसको मैं निकाल के धो के पीऊंगा, शिफा हो जाएगी। से फेरने के लिए और आपको कुरान मजीद की तिलावत से महरूम करने के लिए एक साजिशी अनासिर ने ये मन गढ़त और बेअसल वाक़या मशहूर किया है। इसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल न दें। दूसरी चीज, आज दूसरा चौथा दिन है, आजान शुरू हो गई है। आजान बहुत बड़ा अमल है, लेकिन इस मौके पे आजान कहना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, इसलिए उससे भी बचने का एहतमाम करें। देखिए ना जी, ये मौका ऐसा कि अल्लाह का गज़ब भड़का हुआ है, अल्लाह के गुस्से की आग मौजन है, उसी की निशानी ये वबा है। तो हम ऐसा अमल क्यों ना करें जिससे अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो। इसके बजाय हम वो अमल कर रहे हैं जो सुन्नत रसूल के खिलाफ होने की वजह से अल्लाह के गुस्से को मजीद बढ़ा रहा है। उलमा ने इसको बिदअत लिखा है। ऐसे हालात में अगर हम बिदअत को और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर इस वबाई मर्ज से छुटकारे की कोशिश करेंगे तो ये आग मजीद फैलेगी, ये कम नहीं होगी। इसलिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हाथ से जाने न दें और अल्लाह से दुआ मांगा करें। ये नमाज तहज्जुद का जो वक्त होता है ना जी, ये सिर्फ अपनी बीमारियों के लिए, अपनी सुस्तियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए नहीं होता। बंदा उठता है ना, जब बीमार होता है, परेशानी रहता है, कहते हैं तहज्जुद में उठूंगा, दुआ करूंगा। ये भी मुसीबत है, ये भी हम सब के लिए, पूरी कौम के लिए एक परेशानी का मसला है।
تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کریں، روئیں، شاید کسی کا آنکھوں کا آنسو اللہ جل جلالہ کو پسند آ گئے اور اس آنسو کی برکت سے اللہ اس وبا کو، اس عذاب کو، اس پریشانی کو دور فرما دیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اقوام عالم میں پھیلی ہوئی اس افراتفری کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، سنت ادا فرمائے۔